Good morning, students. Let's pledge. I summon commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Today we will revise chapter 1, memory and storage devices. Okay, page number 7. See, data and information. We have discussed earlier, data is just a collected fact or figure. Means see, 12, 15, 8, these are the data. है ना? And information. From data, when we get answers or output, है ना, is called information. Like 12, 15, 8 में we know grade 3rd students, है ना, 12 students play basketball. In grade 4, 15 students play basketball. And grade 5, 8 students play basketball. So these are the informations which we get from the data. Okay, see, come to the next page. Another important things is memory. Computers memory. Computers store data and informations. Where, है ना, where to store data and information? So computer has memory, which is called computer memory, and all the data and information stored in computer's memory. But we have to know कि computer memory is of two types, primary memory and secondary memory. Secondary memory, है ना, all the external storage devices like CD, DVD, Blu-ray disc, pen drive, flash drive, memory card, cloud storage, these are external or secondary memory. ठीक है? And primary memory is inbuilt memory in the computer system, which is read-only memory, in short ROM. Random access memory, in short RAM, है ना. I can ask to you कि full form बताओ ROM की, then you will tell me read only memory. ठीक है ना. And short form of read only memory is ROM. ठीक है. So like this you have to learn with spelling. Okay. And these are the primary memory and inbuilt memory, and these are the external memory. Okay. तो प्राइमरी मेमोरी में सी जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी है एंड नॉन वोलाटाइल. नॉन वोलाटाइल मीन्स नॉट चेंजेबल, है ना. वी कैन नॉट चेंज, यूजर कैन नॉट चेंज इट. ठीक है. एंड रैम इज वोलाटाइल इन नेचर, मीन्स चेंजेबल. ईच टाइम यू शट डाउन योर कंप्यूटर एंड रैम विल गेट इरेज्ड. ठीक है ना. एंड न्यू टाइम जब भी आप दोबारा कंप्यूटर स्टार्टअप करते हो देन रैम एक्सेस न्यू वर्क. ठीक है ना. तो ईच टाइम रैम चेंज्ड. ठीक है ना. जब भी हम स्टार्टअप करते हैं कंप्यूटर और शट डाउन करते हैं. ठीक है ना. बट रोम इज इनबिल्ट मेमोरी एंड इज नॉट चेंजेबल बाय द यूजर. ठीक है ना. इट प्रोग्राम्स ओनली वंस बाय प्रोग्रामर. ओके. सो लेट्स रीड फर्दर अबाउट primary memory. Primary memory store programs and instructions that can be directly read by the CPU. Program and instructions directly read by the CPU. ठीक है ना. First is read only memory, second is random access memory. ठीक है. Read only memory. The ROM is located on a circuit board known as the motherboard of the computer. मीन्स सीपीयू के अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सारे जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो सारे अटैच्ड होते हैं. ठीक है ना. तो रोम भी दैट सर्किट बोर्ड
है ना, इनसाइड द सर्किट बोर्ड अटैच्ड होता है, ठीक है। नाउ सी, रोम कंटेन्स प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर नीड्स टू ऑपरेट। ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि कंप्यूटर नीड्स टू ऑपरेट। ऑपरेट मीन्स कंप्यूटर को ऑन करना, चालू रखना, है ना, कंप्यूटर पे कोई भी काम करना, है ना, कंप्यूटर हैंग ना हो, कोई भी न्यू डिवाइस अगर आप अटैच करते हो, कोई एक्सटर्नल डिवाइस अटैच होता है कंप्यूटर में, है ना, देन इट विल हैंडल। सो रोम कंटेन्स प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर नीड्स टू ऑपरेट, ठीक है ना। इसका मीनिंग यही हो गया कि कंप्यूटर को ऑन रखना, है ना, और कंप्यूटर में कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर या न्यू डिवाइस अटैच होता है ना, तो वो उसको कनेक्ट करता है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। सो कंप्यूटर नीड्स टू ऑपरेट, जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं, रोम में, ठीक है ना। इट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम। एंड रैम is a type of computer memory where the computer and data currently in use are kept. Means currently कोई भी डाटा अगर आप कंप्यूटर में ओपन कर रहे हो तो जब भी कोई प्रोग्राम ओपन होता है कंप्यूटर में तो वो उसकी स्पेस तो चाहिए ना, है ना, कहाँ ओपन होगा, वो ऑलरेडी स्टोर तो है वो, लेकिन जब आप ओपन करते हो इट नीड्स स्पेस, तो रैम प्रोवाइड दैट स्पेस। सो वी कैन से कि रैम रिक्वायर्स पावर टू कीप द डाटा ऑन रैम accessible. This is very important line. See, RAM or it requires power to keep the data on RAM accessible. ये पावर रैम के पास ही होती है कि कोई भी डाटा और इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए और कंप्यूटर में आप ओपन करते हो देन रैम विल एक्सेस इट, ठीक है ना। वो सारे प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशंस जो आप करेंटली वर्क कर रहे हो कंप्यूटर पे वो सारे रैम विल एक्सेस, ओके। और मैंने रोम में क्या बताया था कि रोम हैज़ द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर नीड्स टू ऑपरेट, तो कंप्यूटर को ऑपरेट करना और कोई भी करेंटली प्रोग्राम को एक्सेस करना, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। सो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ठीक है। बट रिमेंबर बोथ आर द प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। Okay, come to the next page. RAM also fixed inside the CPU circuit board, ठीक है, RAM and ROM both, ठीक है। Now see difference between ROM and RAM. Storage, ROM store data permanently, है ना, but RAM store data temporarily, okay, we know how, ठीक है ना। Nature, it is a non-volatile memory and it is RAM, it is known as volatile memory, ठीक है, means changeable, ठीक है। In use, it is used by the CPU only to read data and it is RAM, it is used by the CPU either to read data or to write data on it, okay। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रोम एंड रैम में डिफरेंस वी कैन फाइंड, ओके। नाउ सी द सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट because all the data and information stored in secondary memory. So it is very important part of computer system. ठीक है ना. Secondary memory store data permanently until it is deleted or overwritten. जब तक आप खुद से delete नहीं करते तब तक वो permanently secondary memory में store रहता है data. ठीक है. The data stored in this memory can be saved for later use. जब कभी भी आप इसे open करना चाहो, reuse करना चाहो, you can do it. Okay. Secondary memory does not get erased when the computer is shut down. ठीक है ना. बट जब कंप्यूटर शट डाउन होता है तो कौन इरेज्ड हो जाता है? रैम. रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी. ठीक है. और यहाँ पे बात हो रही है सेकेंडरी मेमोरी की. सेकेंडरी मेमोरी क्या है? परमानेंट मेमोरी. सो इट डज नॉट गेट इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन. ठीक है. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलियरी मेमोरी.
और एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी को हम जब चाहो तब कंप्यूटर से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और बाहर से कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी अटैच कर सकते हैं, लाइक CD, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, है ना। हार्ड डिस्क, वी कैन ऑल्सो अटैच हार्ड डिस्क एक्सटर्नली, ठीक है ना। दैट इज वाई वी कॉल इट एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, नाउ इंटरनल मेमोरी हैज अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। इंटरनल मेमोरी कौन सी होगी हमारी? इंटरनल मेमोरी होगी प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम, एंड इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड देयरफॉर सेकेंडरी मेमोरी इज रिक्वायर्ड। और हमें तो अनलिमिटेड स्पेस चाहिए, इतना सारा डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो वो कहाँ स्टोर होंगे, है ना। सो वी नीड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, नाउ सी data storage unit. Okay, we will read about data storage unit next day. I think this is enough for today. You have to revise types of memory, primary memory, secondary memory, and difference between ROM and RAM. Okay, have a good day.